Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Welcome to the Officers Adda channel of Adda 24/7. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. So आज संडे है, we are going to start the mini marathon of your LRB subject as we know that कि आप लोगों का LRB का जो एग्जाम है 20 नवंबर को है. So we have a very less time. So before starting this session, a very happy गांधी जयंती to all of you. सबको गांधी जयंती की शुभकामनाएं. ओके इनको याद करके आज का हम लोग सेशन करेंगे. और इस सेशन को शुरू करने से पहले जैसा कि आप देख सकते हैं 81% का डिस्काउंट आप लोग का आज भी है. सो जिस किसी को भी अभी जो हम लोग का रीसेंट बैच है दैट इज दी 3000 एमसीक्यू बैच, अगर आप लोग को 3000 एमसीक्यू बैच परचेज करना है तो सिंपली आप लोगों को Y391 कोड यूज करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट. और ये आप लोग बैच को यहाँ पे देख सकते हैं. ओके ये आप लोग का बैच है, ये विदाउट वीडियो कोर्स है. इट मींस इसमें रिकॉर्डेड जो लाइव सेशंस हैं जो हम लोग पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट का, वीडियो कोर्स नहीं होगा, यहाँ पे वीडियो कोर्स होगा. तो आप लोग को जो भी बैच लेना है और दोनों में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, बस इसमें आप लोग का वीडियो कोर्स नहीं है, इसमें आप लोग का वीडियो कोर्स है और प्राइस में दोनों में डिफरेंस है. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से. Number 1 question, the bank B allowed overdraft to the firm ABC on a number of occasion. मतलब जो बैंक B है वो ABC फर्म को ओवरड्राफ्ट मतलब लिमिट से ज्यादा हमेशा देता था ABC फर्म को, बट लेटर ऑन लेकिन बाद में on a particular day returned the check and did not allow the overdraft. So you have to tell me that whether the bank can do or not. First option is the bank is within its rights to do so. Second, the bank cannot do so without giving notice to the party regarding its intention not to continue the overdraft. C है, the bank cannot to do so if there is a debit balance in the account since its recovery can become the problem for the bank. And the last one is the bank can do so after recovering the entire amount in the previous overdraft balance. Which of the following is the exact one? Yes. A very good afternoon to all of you. These types of question can become in your 2 marks question. Okay, 2 marks questions. So please read all the options. The case is very simple. The bank is allowing the overdraft facility to the firm n number of time, but later on it means बाद में उन्होंने क्या किया, they did not allow the overdraft. So what will be the consequence? And everybody have to participate in this question and answer format. A very good afternoon to all of you. So whether the bank can do so or not, and what will be the consequence for that thing. And we will be do a very quick questions and answer series. Okay, बहुत बढ़िया. The bank cannot to do so without giving notice to the party regarding its intention not to continue the overdraft, because for every legal procedure you have to give the opportunity to the other person also. So that's why in that case the bank cannot do so without giving notice to the opposite party. So B is the right answer. Exactly. Okay, सबको यहाँ पे फटाफट आंसर देना है इसमें. Next, the period of second question is the period of term loan classification in the following does not match. मतलब इन चारों में से कौन सा आप लोग का मैच नहीं कर रहा है. फर्स्ट ऑप्शन इज शॉर्ट टर्म लोन. इसमें इसका आंसर है दैट इज repayable within 1 year. मतलब कॉन्सेप्ट को देखिए, ये सीधा कॉन्सेप्चुअल बेस है. मीडियम टर्म लोन का मीनिंग क्या है, repayable after 1 year but up to 7 year तक हम पे कर सकते हैं. एंड लॉन्ग टर्म लोन दैट इज मोर देन 7 year के बाद भी हम लोग पे कर सकते हैं. और डी है नन ऑफ द अबव. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट वन. ये कॉन्सेप्चुअल बेस है. अगर आप लोग को शॉर्ट टर्म लोन का मतलब मालूम है, मीडियम टर्म लोन का मतलब मालूम है, लॉन्ग टर्म लोन. सो वेदर दिस इज द राइट वन और नॉट. सेकेंड वन. सेकेंड का एग्जैक्ट आंसर क्या है, डज नॉट मैच, जो इसमें मैच नहीं करता है. बहुत बढ़िया कृतिक सर, नवनीत सर. ये जो मीडियम टर्म लोन है इसका अप टू 3 year है, तो ये आप लोग का
गलत आंसर है। ये सही है, ये सही है, बट बी इज नॉट द राइट वन, सो बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ओके, गुड। नेक्स्ट, ध्यान से देखो, इस मिनी मैराथन में हर टाइप के क्वेश्चंस है, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स। ये क्वेश्चन अगेन आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ध्यान से फैक्ट को पढ़ेंगे। बैंक बी सैंक्शन और टर्म लोन, बैंक बी ने क्या किया, एक टर्म लोन सैंक्शन कर दिया। किसको, XYZ लिमिटेड कंपनी को, विद अ कंडीशन दैट, और किस कंडीशन में लोन दिया, दैट इफ द बोरोवर फेल टू पे 2 इंस्टॉलमेंट, मतलब अगर बोरोवर ने 2 इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, द एंटायर अमाउंट ऑफ लोन विल बी बिकम रीपेबल इमीडिएटली। मतलब चेतावनी, कंडीशन क्या रखा कि लोन आपको इस शर्त पे मिलेगा कि अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए, सो यू हैव टू पे ऑल द अमाउंट इमीडिएटली। सो बताइए, इफ द बोरोवर डिफॉल्ट्स इन मेकिंग द रीपेमेंट ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट, तो बताइए इस केस में क्या होगा। पहला ऑप्शन, द बैंक कैन ट्रीट द एंटायर अमाउंट ड्यू फॉर द पेमेंट एंड कैन डिमांड पेमेंट। सेकंड, द एग्रीमेंट इज अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। व्हाट इज नेचुरल जस्टिस, जो नेचर के अगेंस्ट है, टू विच बैंक कैन नॉट, या सच एग्रीमेंट आर वॉइड, दैट इज इलीगल, कैन नॉट बी इन्फोर्स, या बैंक कैन रिकवर द अमाउंट ड्यू इंस्टॉलमेंट ओनली। थर्ड का एग्जैक्ट आंसर बताइए। ये तो बिल्कुल आंसर आप लोगों के क्वेश्चन में लिखा हुआ है। द आंसर इज रिटन इन योर क्वेश्चन of the third one. The answer is clearly written in the question. What will be the exact answer? चक्रवर्ती सर देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आप लोग का आंसर छिपा हुआ है। इसमें आप देखिए, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई जब 2 इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया तो एंटायर अमाउंट ले लेगा, तो एंटायर अमाउंट ले लेगा, तो कहां पे ये चीज लिखा हुआ है, इन द ऑप्शन ए, द बैंक कैन ट्रीट द एंटायर अमाउंट ड्यू फॉर द पेमेंट एंड कैन रिकवर द डिमांड पेमेंट। सो ए इज द राइट आंसर। अब आप लोगों ने डी क्यों बोला जब इसमें कंडीशन लिखा हुआ है, तो सो प्लीज रीड ऑल द ऑप्शंस बिफोर गिविंग द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अच्छा, डिमांड लोन में बताइए लिमिटेशन पीरियड कितना होता है। जो भी आप लोग को चार्ट गिवन था पेड बैच में, उन लिमिटेशन पीरियड को याद कर लीजिएगा। तो डिमांड लोन में कब से स्टार्ट होता है, बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, बिगिन फ्रॉम द डेट द लोन बिकम ड्यू, या बिगिन फ्रॉम द डेट द लोन इज डिमांडेड बैक बाय द बैंक, या लास्ट है लिमिटेशन बिगिन फ्रॉम द डेट विच एवर इज अर्लियर ऑफ द अबव डेट्स। बताइए फोर्थ का एग्जैक्ट आंसर। इन द केस ऑफ डिमांड लोन, द लिमिटेशन, यहां पे ये इसका एक इंफॉर्मेशन दिया है, दैट मतलब इंफॉर्मेशन क्या है, आप लोग का लग रहा है आंसर ही दिया है। इन द केस ऑफ डिमांड लोन द लिमिटेशन इज 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये गलती से रीजन यहाँ पे आ गया, इसका रीजन आ गया है इसका, इन द केस ऑफ डिमांड 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो इसका ए इज द राइट आंसर। इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ऊपर लिखना था, बट ये नीचे आ गया है। ए इज द राइट आंसर क्लास, ये यहाँ पे नहीं है, ये ना रीजन है। किसका रीजन है, ये फर्स्ट वाले का। ए विल बी द राइट आंसर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, इसका डिमांड लोन का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि इसमें ये जो डी का ऑप्शन है, डी का ऑप्शन बस यहीं तक है, दैट अर्लियर आउट ऑफ द अबव डेट, ये अबव डेट की बात कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सो द आंसर विल बी बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द रीजन इज दिस वन। इज दैट क्लियर क्लास? ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आप लोग को, ये रीजन था जो कि यहाँ पे नीचे मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो पर्सन प्रपोजल करता है उसको क्या बोलते हैं, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल उसको क्या बोलते हैं। प्रपोज, प्रपोजी, प्रोमिसी, प्रोमिसर, प्रोमिसर, प्रोमिसी, प्रपोजी, प्रपोजर। बहुत सिंपल है। द पर्सन हु मेक प्रपोजल और जिसको प्रपोज किया जा रहा है, दोनों को क्या बोलते हैं। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, आप लोग सेशन को यहाँ पे पहले फटाफट लाइक कर दीजिए, सेशन को जितना हो सके शेयर कर दीजिए इंस्टा फेसबुक पे, और 20 नवंबर टारगेट करिए, LRB का आप लोगों का एग्जाम है।
सो बताइए भाई, पांचवे का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? किसको, जो हम जिसको प्रपोज करते हैं उसे क्या बोलते हैं भाई? जिसको हमने प्रपोज किया, द पर्सन टू हुम वी आर प्रपोजिंग, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रोमिसर, और जिसको प्रपोज किया जा रहा है दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज द प्रोमिसी. सो सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर. एक्सीलेंट. नेक्स्ट, which of the following facility is not the part of non-fund based facility? क्रेडिट फैसिलिटी आप लोग का टू टाइप्स का होता है, फंड बेस्ड फैसिलिटी एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी. सो इन द नॉन फंड बेस्ड, इन विच द थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व, एंड इन द फंड बेस्ड ओनली टू, द बैंक एंड द बोरोवर. सो in this case, in this question, the examples are given, so you have to identify which is not the part of non fund based facility. ध्यान से, not the part of non fund based facility. सिक्स्थ का आप लोग को याद है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, बैंक गारंटी भी है, ये और एग्जाम्पल है नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी का. सप्लायर क्रेडिट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल. आप लोगों के लिए एक इवेंट रखूंगी जिसमें हम लोग जितना भी फंड बेस्ड के एग्जाम्पल्स हैं और जितने भी नॉन फंड बेस्ड के एग्जाम्पल हैं उन सब का हम लोग डिस्कशन करेंगे, नाम को जानेंगे. बिकॉज आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये दोनों है जो कि सिलेबस का भी पार्ट है, लेकिन आप लोग को और भी सारे एग्जाम्पल में एक अच्छा सा हम लोग एक दिन करेंगे इसको, सो दैट आप लोगों के और एग्जाम्पल यहाँ पे मालूम चले. सो डी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज सप्लाई क्रेडिट में भी आप लोग का सप्लायर होता है, बैंक होता है, और जिसको सामान सप्लाई किया जाता है वो पर्सन होता है, 3 पर्सन होते हैं. सो दैट्स वाई सप्लायर क्रेडिट भी आप लोग का नॉन फंड बेस्ड का एग्जाम्पल है. ओके, नेक्स्ट, एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इसको क्या बोला जाता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट. एक प्रॉमिस या कई सारे प्रॉमिस जिसमें आप लोग का कंसिडरेशन होता है. कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले कुछ, या प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो इस चीज को क्या बोलते हैं? क्या इसको वो हम लोग को बोलेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट. सेवेंथ, okay, English में, because these, okay, I will speak in English also. Yes class, what will be the exact answer? That the promise, every set of promise forming the consideration. If you go to the voidable contract, so class, voidable means if any contract is done with the coercion, fraud, undue influence, misrepresentation, so in these cases one party have option to breach the contract, right? और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? द एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट वी हैव लर्न, इनिशियली contract is valid but later on contract is void, but the agreement, the definition is this one. Seventh one, D is the right answer. Excellent class. Seventh one, this is the definition of the term agreement. Every promise, because we have learned now, offer plus acceptance is equal to promise, so this is the promise. That's it. Seventh one, D is the right answer. Okay, next. The bank prefer secured loan over the unsecured loan. Why? Because in secured loan, the borrower is depositing the security. That's why bank always prefer the secured loan. So there are 4 options. आपको बताना है कौन सा सही है. सबसे पहला, the economic success itself does not assure the repayment. Willingness of the borrower to repay is an important factor. If the borrower is not willing to pay or economic activity turn out unavailable, loan could be recovered from the security and all of the above. So which of the following is right? Exactly, Rekha ma'am. Good. And class, do not forget to like and subscribe our channel. Shyam sir, please read all the options. Why the secured loan preferred over the unsecured loan? You have to study and read all the option, and here D is the Chakrabarti sir. Why you people are saying C? The economic success itself does not assure the repayment. This is absolutely right.
Willingness of the borrower to repay is important factor in secured loan also. Exactly. If the borrower is not willing to pay, this is the absolutely right for the secured loan. So all of the above is the right one. D is the right answer. Okay, D is the right answer. Okay, next. Which of the following statement regarding registration of the firm is not correct? And we have learned about the registration of firm that it is optional. It is not compulsory for the partnership firm to be registered. So tell me which of the following is not correct. सबसे पहला, registration of firm is optional, not compulsory. Registration firm is done by ROF. C. Registration of firm and partnership deed take place simultaneously. Yeah, none of the above. We have to tick mark on not correct. Not correct regarding this one. Not correct. देवाशीष सर not correct पे tick mark करना है. Not correct. Ninth, creative world you are saying A. We have to tick mark baba. Not correct. Correct पे नहीं. Because you people are saying if A, registration of firm is optional, not compulsory. This is the right statement. You have to tick mark baba. Not correct. So here if you have given the right answer C, कि registration of firm and partnership deed take place simultaneously, no. That is different one. Registration of firm is different and partnership deed is different. C is the right answer. Okay, good. Next. Okay, this is the section based question and as we know that section based question 3 से 5 आते हैं. देखते हैं याद है कि नहीं याद है. The registrar of the firm when satisfied that the provision of the section of Indian partnership have duly compiled with the record of an entry in registrar of firm. So tell me in which section that types of statement is given. 59, 57, 53, 56. Don't worry if you don't know. No. It's a mummer ready, sir. Firm is not a company. Firm is a different thing. Firm is a different thing. Company is a separate legal entity, but the firm have a not separate legal entity. So here it's not 53, 10th, 59. Okay, don't guess. Don't guess. For this thing, the right answer is, that is 10th one. B is the right answer. Section 57, talk about this one. Okay, you have to learn this one. Don't worry. If we talk about non-registration, or you can say the consequence of non-registration of firm, that is given in section 69 of the partnership. Okay, 69. Next. If a registered firm changes its name or principal place of business class, then the alteration is required to be registered with a period of, means we have to confirm, हमें registrar of firm को inform करना है कि that हम लोग नाम चेंज कर रहे हैं place of business. So what will be the register with a period of 30 days from the date of making such alteration, 2 months from the date of making such alteration, 3 months from the date of making such alteration, and there is a no limit. कभी भी जाओ. 11th में है या तो कभी भी जाओ. Suppose if we want to change the particular name and registration office of the or principal place of the business, then we have to inform to ROF. We have to inform to ROF exactly within 30 days from the making of such alteration. Exactly. Okay, बढ़िया. Excellent. Next. Okay. If the ROF, that is registrar of firm, refuses to make amendment in the entry of register of firm, oh my god, it means the ROF refuses that he will not entry any amendment in the registrar of firm. So what you will do? That he can directed by the state government to do so. That it means the state government will order the registrar of firm. Second, Ministry of Corporate Affairs, Government of India can direct him. The competent court can direct him to do so, or company law board can direct him. It means who have a authority to direct the registrar, please put this amendment in the register. हाँ जी बताइए कौन ऑर्डर देगा रजिस्ट्रार को? हु विल गिव द ऑर्डर? 12th वन. कौन ऑर्डर देगा? ऑर्डर एंड वी हैव टू फॉलो दैट ऑर्डर.
जल्दी जल्दी जितना हो सके सेशन को शेयर करिए, सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए। कोर्ट नहीं जा सकते हैं, व्हाई नॉट कोर्ट? भाई फर्म का मामला है, आप नहीं, वो चीज नहीं कर रहे हैं। देखो, स्टेट गवर्नमेंट नॉट इंटरफेयर, दिस विल नॉट इंटरफेयर, द आंसर विल बी फ्रॉम सी एंड डी। कंपनी का कोई रोल नहीं है मैम सर, कंपनी का कोई रोल नहीं है। सो अ कॉम्पिटेंट कोर्ट कैन डू, डायरेक्ट हिम टू डू सो, द कॉम्पिटेंट कोर्ट विल बी अलाउ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, बाप रे, यहाँ कहाँ जाएंगे अजय सर हम लोग? गवर्नमेंट के पास जाएंगे इस चीज को लेके? एक कॉम्पिटेंट कोर्ट अलाउ करेगा तो उसको करना पड़ेगा। मान लीजिए दिल्ली में है तो दिल्ली का कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट, सी विल बी द राइट आंसर। कहां जाओगे गवर्नमेंट के पास? उतना टाइम है क्या गवर्नमेंट के पास? नेक्स्ट, इफ सम पर्सन प्रोवाइड रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, व्हाट इज अ पनिशमेंट? कितना पनिशमेंट होगा अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया? 1 month only, 1 month and fine, 2 month and fine, 3 month and fine. What is the exact answer? Do not give a wrong answer. रेखा मैम, इन दिस क्वेश्चन हमने रजिस्ट्रेशन का बात नहीं किया है। हमने सिर्फ इतना बोला है कि अगर चेंज करने को मना कर दिया रजिस्ट्रार ने तो क्या होगा, तो हम कहां जा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा है, समझे मैम? रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा है। So what will be the exact answer class? For the 13 one, the exact answer is imprisonment up to 3 month and fine. D is the right answer. Not C गंगा सर, 3 month के लिए, and का मतलब ये भी दोनों। नेक्स्ट, सारा क्वेश्चन पार्टनरशिप का लग रहा है। A partner of an erstwhile unregistered partnership firm. It means now, Rekha ma'am, now see, it's the unregistered partnership firm want to bring a suit to enforce a right arising out of the contract. He can do so. Second option, he can do so by making an application for registration before this. He cannot to do so simply by making an application for registration before filing the suit, and none of the above. Now you have to give me the answer that the partnership firm is not registered. Now what you will do? अब बताइए। अब इस क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन में है that the partnership firm is not registered. Now what you will do? Exactly, Rasha ma'am. The 14 one, आंख बंद करके आंसर दीजिए, that C is the right answer. He cannot do so by simply filing an application because an unregistered firm have a several consequence that is given in section 69 of the Partnership Act. Okay, excellent. Next, a partner of unregistered firm wants to file a suit for dissolution of firm and to enforce a right to release the property of dissolved firm. What is question? A partner of unregistered firm wants to file a suit for dissolution of firm or enforce a right to release the property of this one. First option, he cannot to do so. He can do so. Second option, under section 63, and C, he can do so after getting the firm registered, and none of the above. For the dissolution of the partnership firm, please check the question. Exactly. So the right answer is A is the right answer. Excellent class. Good. A is the right answer. Good. Next. The judgment of House of Lord, that case is not from India. In the case of Salomon versus Salomon and Company relates, it is a very landmark case in the Company Act. Tell me that in that case, the procedure for incorporation of company, it's relate.
procedure for liquidation of the company's rate, the principle that the company has corporate personality, and the principle that company is a legal entity. Which of the following is the right one? 16th. It's a very famous case about the something feature of the company. Some feature of the company relate to the Salomon versus Salomon and Company Limited. What is the exact answer? 15. 16th. You have to learn that thing. You have to learn that thing. This is very important. In the Salomon versus Salomon, this case is related to the principle that the company have a corporate personality, that it have a separate legal existence apart from this one. C is the right answer. You have to remember this question. C is the right answer. 16 one. Okay, not D, it's a C one. Next, if the goods means movable, are lying in a public warehouse where warehouseman acknowledge to the bank that he hold goods on the behalf of bank, what it will be called? Actual pledge, constructive pledge, symbol pledge. Yeah, it is not pledge at all. And what is pledge? Pledge means in which, suppose if we have given goods to the other party, so we have to submit the security also if we want to take money from the creditor. That is called pledge. That is given in the Indian Contract Act. Pledge definition. Okay, Jayashree ma'am. कोई नहीं, केस नहीं मालूम तो याद कर लीजिए. एटलीस्ट आज के बाद ये केस तो नहीं बोलेंगे ना जयश्री मैम. बताइए क्लास. If a goods are lying in a public warehouse and warehouseman acknowledge to the bank that he hold the goods on the behalf of the bank, whether it is called actual or constructive, two options are there suppose. So in the two option, the exact one is constructive, because actual means I'm holding, but my goods is holding by another person, so that is called the constructive pledge. So B is the right answer. 17, B is the right answer. Excellent, Navneet sir. Next. Pledge can be on the basis of what? Only an agreement in writing, only on the basis of implied agreement from the nature of transaction, on the basis of written agreement or implied agreement from the nature of transaction, or none of the above. Pledge can be on the basis of what? And class, do not forget to like and subscribe our channel. So before you have to give this answer, as we know that the contract always of two type, express contract and implied contract. What is express? Written and oral, and implied by the act and conduct. So here the pledge is the also the special type of contract. So this contract can be also on the base of written and the implied agreement. So C is the right answer. Okay, cool. Next one. Which of the following cannot create pledge? The person who cannot create pledge: the owner of the goods, the mercantile agent subject to the fulfillment of certain condition. It means the mercantile agent can create pledge, but he have to fulfill the certain condition. तीसरा है, the seller of good is in possession of the goods even after sale subject to certain condition, and none of the above. Cannot create pledge. The person who cannot create pledge. Tell me the exact answer. Why you people say that 19 seller of the goods in possession of the goods, seller of the goods in possession of the goods even after sale, subject to certain condition, means exceptions are also attached. Exceptions are also attached, class. Owner can give the goods as a pledge,
mercantile agent can also do. Why the seller of goods? The possession is there now. Possession is there, so it means that the buyer have not given the full price. It may be happen the buyer have not given the full price, because the subject to certain condition is there. So if the seller have a possession of goods, so he cannot create the pledge class. Tell me. Exactly, Deepti ma'am. Seller is not the owner of the good. Okay, Baba Piyush sir. बताइए भाई, सेलर ऑफ द गुड्स इन पोजेशन ऑफ गुड्स इवन आफ्टर सेल, मतलब सेल के बाद भी वो चीज हमारे पास है, सेलर के पास है, तो क्या वो प्लेज नहीं कर सकता है? बताइए बताइए, एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन टाइप का है 19 का, बताइए। मर्केंटाइल का मतलब होता है मैम ऐसे जो बिजनेस रिलेटेड एजेंट होते हैं मैम, दैट इज कॉल्ड मर्केंटाइल। मर्केंटाइल। तो बताइए, अनपेड सेलर क्या प्लेज नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते अनपेड सेलर। व्हाई नो पवन सर? अनपेड सेलर प्लेज नहीं कर सकते हैं। ग्रेट, जल्दी बताइए भाई इसका एग्जैक्ट आंसर। ए बी तो बिल्कुल सही है, ये लोग प्लेज कर सकते हैं। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। देखो ये तो सही है, ये भी सही है, दोनों कर सकते हैं प्लेज। बट इन सी, सेलर ऑफ गुड्स इन पोजेशन ऑफ द गुड्स इवन आफ्टर द सेल सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन, मतलब किसी और को दे दिया हमने, किसी और को दे दिया है, मैं ओनर नहीं रह गई लेकिन मेरे पास स्टिल पोजेशन है। बस इतना आंसर। अब फ्यूचर मत सोचना कि वो क्या कर सकता है, कब लेगा, क्या लेगा, ऐसा मत सोचो। इतना बोलो कि क्या वो प्लेज कर सकता है कि नहीं कर सकता। प्लेज का मतलब है मुझे कुछ पैसे चाहिए इसके इस चीज के रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्लास पोजेशन रिक्वायर्ड फॉर एग्जैक्टली, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। भाई मेरे पास पोजेशन है। देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, इसका मतलब समझ आओ कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शन है इसका। तो भाई कर सकता है, सेलर भी कर सकता है, पोजेशन तो है ना। और हम लोग प्लेज में क्या करते हैं? क्या प्लेज में हम लोग ओनरशिप देते हैं? प्लेज में तो हम लोग सिर्फ पोजेशन ही तो देते हैं ना। रेखा मैम मैंने क्या बोला? प्लेज में हम लोग पोजेशन ही तो देते हैं ना। तो भाई ये सेलर सर्टेन, यही चीज तो आप लोग को आंसर में देखना है। ये चीज लिखा हुआ है तो मतलब भाई ये गुड्स को पोजेशन में दे सकता है, बिकॉज प्लेज में भी हम लोग यही कर सकते हैं। समझे? सो डी इज द राइट आंसर इसका। डी इज द राइट आंसर। चलो मजा आया ये क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स है, क्या वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट है? चार ऑप्शन है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोले तो वन पर्सन हैव अ राइट टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड है, कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाना ये वॉइड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल वैलिड, बाद में वॉइड। पवन सर मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन में समझ जाना कि बायर डिमांड करेगा तो क्या है, मतलब जो भी आप लोगों के आंसर क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो सब सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन है आप लोग का। बायर डिमांड करेगा तो ये करेगा, छोड़िए ना, बस जो क्वेश्चन पूछा है उसको आंसर दीजिए, रिप्लाई करिए। क्या वो कर सकता है, हाँ या ना, बस बताइए क्लास। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, दैट इज सिंपली अ कॉन्ट्रैक्ट इज द राइट आंसर। एक्सीलेंट, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, आज प्लेज पूरा अच्छे से लगा पढ़ के रहेंगे हम लोग। इफ द पाउनी, जो पाउनी है, हैज इनकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, पाउनी मतलब बैंक, बैंक अगर कोई चीज संभाल के रखता है और अगर उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस खर्च किया है ऑन द गुड्स प्लेज, जो गुड प्लेज है, तो बताओ पाउनी का राइट क्या है? He can recover the amount from the goods. He can recover the amount from goods if the amount was incurred with the consent of the pawnor. या he cannot recover the amount from the goods, but he can file a suit for recovery. या none of the above. या none of the above.
गंगाधर सर एक्सप्लेन ऑल दी ऑप्शंस। भूल गए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या? हाँ गंगाधर सर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का गंगाधर सर। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है जो शुरुआत से ही क्या होता है, वॉइड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो शादी वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, इनिशियल में वैलिड है, बाद में वॉइड हो जाता है। तो बताइए क्लास 21 का एग्जैक्ट आंसर क्या है? क्या वो रिकवर कर सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द गुड्स इफ द अमाउंट वाज इनकर्ड विद द कंसर्ट ऑफ द पाउंडर। अपने मन से नहीं भाई, मैंने कंसर्ट लिया था पाउंडर से कि ये काऊ है, इसको इतना बीमारी हुआ है, मैं इसका इलाज करवा रहा हूँ, ठीक है करा लीजिए, जितना इलाज का हुआ मैं मांग सकती हूँ पैसा, मैं मांग सकती हूँ पैसा। सो दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। चारा खाएगी, हाँ बिल्कुल रेखा मैम, कहा तो कभी भूलोगे नहीं आप लोग। नेक्स्ट, इफ द पाउंडर डिफॉल्ट्स इन मेकिंग पेमेंट ऑफ द लोन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट अवेलेबल टू द पाउनी। पाउनर अगर पैसा नहीं दे पाता है तो बताइए कौन सा राइट्स पाउनी के पास अवेलेबल नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, देखना ध्यान से। पहला ऑप्शन, ही मे स्यू द पाउनर अपॉन डेप्थ और प्रॉमिस, ही मे रिटेन द गुड्स एज कोलैटरल, he may sell it after giving reasonable notice, या none of the above। 22। second option है, he may retain the goods as collateral security for that loan or any other loan। सारे स्टेटमेंट को पूरा पढ़िएगा, सारे स्टेटमेंट को पूरा पढ़िएगा, बताइए क्या चीज अवेलेबल नहीं है? नहीं है। पहला ऑप्शन, he may sue the pawnor upon the debt or promise। सेकेंड ऑप्शन, he may retain the goods for that loan, या कोई सा भी लोन, कोई से भी लोन में, मतलब कोई सा भी लोन में आप वो कर सकते हैं क्या भाई? इसका आंसर आंख बंद करके क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। एनी अदर लोन नहीं, सिर्फ दैट लोन, नॉट एनी अदर लोन। ओके, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ध्यान से, X dispatch certain goods through the railway and pledged the railway receipt। क्या pledge किया? Railway receipt to the Y। Railway failed to deliver the goods to Y। बताइए अब क्या rights available हैं Y के पास? Y can enforce the right of the owner of the goods। Y has to involve X for recovery of the goods। Y is not entitled to recover since he is only the endorsee, not the owner, and X, Y both can file the case। X ने क्या किया? X ने dispatch किया certain goods through railway और pledge कर दिया railway receipt, किसको? Y को, and railway failed to deliver the goods to the Y। गुड, बताइए क्लास, क्या राइट्स हम लोग के पास अवेलेबल रहेंगे? द राइट्स इज अवेलेबल विथ अस। यहां पे सिंपल भाई, Y can enforce the right of owner of the goods, that is X, against the railway। भाई बिल्कुल, मेरा सामान दो मुझे, मैं कर सकती हूं केस फाइल। सो A is the right answer। एक्सलेंट। नेक्स्ट, आज प्लेज लग रहा है सारा क्वेश्चन प्लेज की टाइप हो गया है। XY pledged certain goods to the bank A। वैसे भी आप लोग का मॉड्यूल डी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना हो सके अभी भी टाइम है, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी एंड डी, यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन। इस पे अगर कमांड कर लिया ना तो 60+ मार्क्स से कोई आप लोग को रोक नहीं सकता, मॉड्यूल डी एंड मॉड्यूल सी। So 24 question, XYZ pledged certain goods to the bank A to take loan। ठीक है। Subsequently, बाद में the bank receive a notice from the sale tax department of government to hand over the possession to them for recovery of arrears। अच्छा देखो, इसमें दो स्टोरी है। पहला स्टोरी, उसने अपने गुड्स को प्लेज किया बैंक ए के पास लोन के लिए, लोन चाहिए था उसको। बैंक क्या हुआ, सेकेंड स्टोरी में बैंक एक नोटिस रिसीव किया सेल टैक्स डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो तुमने गुड्स लिया है उस गुड्स को यहां पे दे दो गवर्नमेंट के पास, क्योंकि इस बंदे ने टैक्स पे नहीं किया है, एंड वी वांट द रुपीज ऑफ टैक्स।
ऑप्शन बताइए. द बैंक चार्ज ऑन द गुड इज सब्जेक्ट टू रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट टैक्स. The bank's charge will prevail over the recovery of government dues, due to which first recovery of bank dues shall be take place. The recovery of bank loan and the recovery of government dues shall be on the pro rata basis, that is proportionally. Or last है, the government dues shall be recovered first, and if there is any surplus that can be used for recovery of bank loan. What is the right answer? किसकी जीत होगी? क्या गवर्नमेंट जीतेगा कि बैंक जीतेगा? बताइए. 24. मतलब गवर्नमेंट आ गई तो क्या हम डर जाएंगे? इंद्राजा मैम, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. इन दैट क्वेश्चन मैम, इट वाज आस्क्ड दैट this is the particular person, he just pledged ma'am certain goods to the bank A because he wants loan. So this is the ma'am first story in this fact. The second story is, after that thing, the next thing what happened, the bank received ma'am, this bank received a notice from the ma'am sale tax department of the government to hand over the goods, that is the possession which was in the hand of bank, to give them to the government for the recovery of tax arrear. So you have to tell me ma'am that whether bank will give or bank have authority to recover the loan. The question is very simple. Exactly, Kritik Pranav sir. So in that case class, the question is very simple. The bank charge will prevail over the recovery of government dues, due to which first recovery bank dues shall take place. B is the right answer. हम डरेगा नहीं बैंक गवर्नमेंट से. ओके, हम डरेगा नहीं. सो दिस इज द राइट आंसर. ओके क्लास, इज दैट ओके? क्वेश्चन समझ में आई ये वाला? देखो यही सब आप लोगों के ना 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, यही सब 2 मार्क्स क्वेश्चन. सो अभी भी टाइम है. 1000 क्वेश्चन के एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए. 1000 एमसीक्यू सीरीज को, जिसमें हम यही सब क्वेश्चंस करेंगे. एलआरबी का टाइमिंग है 6 बजे से, सुबह का टाइम है. जो जागत है वो पावत है. ओके, दिस इज द टाइम ऑफ योर एमसीक्यू सीरीज. एग्जैक्टली, ठीक है. चलो नेक्स्ट. ओ माय गॉड, मतलब एक इतना बड़ा फिर इतना छोटा सा. फिर दूसरा क्वेश्चन. The definition of the term hypothecation is available in which act? SARFAESI, Indian Contract, General Clause Act या not available? बताइए. Class, do not forget to like the session. Like का बटन करते रहिए. अजय सर, अब सारे सवाल ऐसे ही अच्छे होंगे, डोंट वरी. अब टाइम आ गया है. मैं तो भाई एलआरबी खत्म होने वाला, जितना क्वेश्चन का मटेरियल सब आप लोगों के लिए कुर्बान. उसके बाद हम सीआईबी में मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस करा दूंगी A to Z. बताइए क्लास, इसका तो सबको आ जाना चाहिए. द एग्जैक्ट आंसर इज बाबा डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेकेशन सेक्शन 2N SARFAESI Act. चलिए नेक्स्ट. एज पर डेफिनेशन ऑफ सेक्शन लो, पीछे क्वेश्चन ये क्वेश्चन. एज पर डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेकेशन अंडर सेक्शन 2 ऑफ द SARFAESI, which of the following feature of hypothecation is not correct? Now remember the definition of hypothecation. You have to tick mark which of the following is not correct. कौन सा सही नहीं है? पहला, it is a charge on existing movable property. It is a charge on future movable property. It is a charge without delivery of movable property, and none of the above. Hypothecation. 6 AM PPB का क्लास होगा. किरण मैम रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा. 10 अक्टूबर से मेरा सेशन स्टार्ट है. 10 अक्टूबर से स्टार्ट है हमारा सेशन. 26. का एग्जैक्ट आंसर बताइए क्या होगा. बहुत बढ़िया. 26 का डी इज द राइट आंसर. ये सारे स्टेटमेंट आप लोगों के सही हैं, इसमें से कोई सा भी गलत नहीं है.
मूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग फ्यूचर, भाई जब आप लोग के कॉन्ट्रैक्ट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है तो व्हाई नॉट हाइपोथिकेशन, व्हाई नॉट हाइपोथिकेशन क्लास. सो डी इज द राइट आंसर. नन ऑफ दी अबव, सारे स्टेटमेंट आप लोगों के सही हैं. डी इज द राइट आंसर. ओके, एग्जिस्टिंग फ्यूचर सब में आप लोग का हो सकता है. 26 डी इज द राइट आंसर. ये सही तो है विदाउट डिलीवरी. रेखा मैम इसको क्यों बोल दिया, हमें नॉट करेक्ट पे टिक मार्क करना था ना. सारे स्टेटमेंट आप लोग के सही हैं. नेक्स्ट, हाइपोथिकेशन बाबा डिफरेंट है मोर्गेज से, लेकिन कौन सा गलत है. देखो इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, बट फॉर दैट थिंग वी हैव टू रीड ऑल द ऑप्शन. Hypothecation, you know. Mortgage, you know. In mortgage, immovable property we give just as security, and this one movable property. Now tell me, not correct. A mortgage is of immovable property. Hypothecation is movable property. C option, if mortgage, there is a transfer of property in favor of the bank. In hypothecation, there is a no transfer of property, but only obligation to repay the money. 27, you have to tick mark on the wrong answer. Not correct. नीतीश सर, फ्यूचर मूवेबल गुड्स कोई सा भी भाई हमें लेना है, मान लीजिए हमें व्हीकल लोन ही लेना है, व्हीकल लोन, तो भाई मान लीजिए आज की डेट में नहीं हुआ, बैंक ने बोला कि आप 10 दिन बाद आ जाइएगा, तो भाई वो फ्यूचर गुड्स के लिए कि सर मैं 10 दिन बाद ये गाड़ी मुझे मान लो मैंने दुकानदार से सर क्या किया, जो शोरूम होता है मैंने गाड़ी को परचेज करना है, बट शोरूम वाले ने क्या बोला कि आपको 3 मंथ के बाद गाड़ी मिलेगा, तो ये फ्यूचर गुड्स ही तो हुआ ना हम लोग का ना सर. गाड़ी तुरंत ऑन द स्पॉट तो मिल नहीं जाता, तो फ्यूचर गुड्स मतलब 3 महीने बाद जैसे ही गाड़ी आएगा तुरंत मुझे लोन मिल जाएगा. दैट इज कॉल्ड फ्यूचर मूवेबल गुड्स. आया समझ में. भाई आजकल के डेट में जो नया नया गाड़ी है, 1-1 साल 6-6 महीना आप लोग का टाइम पीरियड होता है, तब जाके गाड़ी मिलती है. गाड़ी खरीदिए और इसका आंसर जानिए. यहाँ पे क्लास ये तो बिल्कुल सही है. नॉट करेक्ट पे टिक मार्क करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए. मोर्गेज इज इमूवेबल, बिल्कुल सही है. हाइपोथिकेशन इज मूवेबल, बिल्कुल सही है. हमें नॉट करेक्ट पे, इन मोर्गेज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द बैंक, ये कब से हो गया. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है कि ट्रांसफर ऑफ ओनली द इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. सी इज द रॉन्ग आंसर. सो 27 का सी इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, in which of the following cases creation only hypothecation is possible, not pledge. किस केस में hypothecation possible है, pledge नहीं. देखो जो मैंने आप लोग का 60 days का जो सीरीज स्टार्ट किया है ना, छोड़िएगा मत इसको, बिकॉज क्लास 1 से लेकर कंप्लीट, मैं बोल रही हूँ क्लास 1 से लेकर जितना मैं 19 नवंबर तक करवाऊंगी, सारे क्वेश्चंस को देखना. बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग वैसे भी महसूस करते ही हैं 7:30 जो हम लोग का सेशन होता है, बिकॉज मैं एक रिदम से सारे क्वेश्चंस कराऊंगी हर टॉपिक का. सो प्लीज डू नॉट मिस एनी क्लास. जल्दी क्लास 1 बजे इवेंट भी है ये हम लोग का. 28 का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा. 28 का स्टॉक रनिंग रिटेलर ट्रेड शॉप गुड्स इन द कंस्टली हैंड इन बल्क सच एज राइस मिल. हाइपोथिकेशन, तो हाइपोथिकेशन आप लोग का नॉट प्लेज, इन सब में आप लोग का नॉट प्लेज, ये डी इज द राइट आंसर. एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया. ओके ना, फटाफट 2 क्वेश्चन और. प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है. व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट. कॉमन सेंस क्वेश्चन. when it does not comes to the knowledge of person to whom it is made, when it's come to the knowledge of another person that some communication was made. तीसरा, when it's come to the knowledge of person to whom it is not made, या when it's come to the knowledge of person to whom it is made. Proposal, मुझे चाहिए राइस, मैंने प्रपोज किया. प्रपोजल कब कंप्लीट होगा, मतलब मैं जो प्रपोज कर रही हूं, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा. इवेंट मैम 1 बजे एक कॉमन इवेंट है. रेखा मैम 1 बजे एक कॉमन इवेंट है. अच्छा, लास्ट ऑप्शन दिख नहीं रहा क्या आपको. आप दिख रहा है.
29 का डी इज द राइट आंसर। भाई जब दूसरे पार्टी को पहुंचेगा, व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम वी मेड, दिस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, for a loan given by a bank, which of the following is not liable personally due to which loan cannot be recovered from them personally? मतलब भले ही नहीं, लोन तो ले ही नहीं सकते और बैंक इनसे लोन मांग भी नहीं सकता, माइनर, इंसॉल्वेंट, इनसेन या ऑल ऑफ दी अबव। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। वाह, क्या दीप्ति मैम ने आंसर दिया। मैम दिख नहीं रहा इसलिए डी। दीप्ति मैम। आंसर सुन लीजिए, कम्युनिकेशन तब कंप्लीट माना जाता है जब जिसको हम ऑफर कर रहे हैं ना उसको नॉलेज हो जाए, ये चीज समझिए। आई शबाश 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 फॉर 30, डी इज द राइट आंसर। किसी को भी हम नहीं कर सकते। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। जरा फटाफट अपने अपने स्कोर यहाँ पे शेयर कर दीजिए, और जिसको भी भाई क्वेश्चन सीरीज अच्छे वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप लोग बैच में आ सकते हैं, जो कि 3 अक्टूबर यानी कि जो कल से शुरू हो रहा है। कल से आप लोग का पीपीबी और एएफबी शुरू होगा, और इसमें आप लोग का एलआरबी शुरू होगा 10 अक्टूबर से। तो ये आप लोग का बैच है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये विदाउट वीडियो, ये विथ वीडियो। वीडियो कोर्स मतलब जो लाइव आप लोगों का रिकॉर्डेड सेशन हम लोगों ने किया है। तो अगर विदाउट वीडियो वाला देखना चाहते हैं, 9000 इज नॉट द एग्जैक्ट प्राइस, Y391, क्लिक ऑन अप्लाई, यू कैन सी 80% डिस्काउंट इज देयर। 80% सिर्फ 2000 का आपका है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर। अब डेली संडे मिलेंगे हम लोग। संडे अजय सर मिनी मैराथन होगा संडे। ओके, आज शाम में सेशन नहीं है, आज शाम में सेशन नहीं है। अच्छा सुनिए, जिसको प्लेलिस्ट नहीं दिखता, मैं प्लेलिस्ट बताती हूँ, प्लेलिस्ट कहां से दिखेगा। आपको क्या करना है, पहले ये गूगल, आपको क्या करना है, सिंपली पहले गूगल लिख रही हूं मैं, यहां पे सर्च करना है, ठीक है। ये आ गया। आप क्या सर्च करोगे, आप लोग लिखोगे ऑफिसर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। देखो क्या लिखोगे, ये लिखोगे ऑफिसर अड्डा यूट्यूब चैनल। जैसे ही लिखोगे आप लोग के सामने यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा, यहां पे क्लिक करना। यहां पे क्लिक कर दोगे, देखो जैसे ही क्लिक करोगे क्लास, आप देखो ये आप लोग का यूट्यूब चैनल है, इसको बोलते हैं यूट्यूब चैनल। ध्यान से, ध्यान से, ये आप लोग का यूट्यूब चैनल है। अब क्या करोगे, होम लिखा है, वीडियो लिखा है, प्लेलिस्ट लिखा है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, और जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, अब देखो ये सारा आप लोग का इवेंट आ गया। देख लो ध्यान से, ऊपर में देखो, जैसे अभी मैं करा रही हूं ना, देखो जैसे ये 7:30 बजे का जो 60 डेज का हम लोगों ने रखा है, अभी तक 11 क्लास हो गया, ये सारा 11 क्लास का वीडियो है, देख सकते हो, ये रहा। उसके बाद देखो प्रवीण सर का सारा क्लास का, उसके बाद प्रियांशु मैम का सारा क्लास का, हर चीज अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो जैसे डिफरेंस ऑफ एलआरबी, क्या क्या डिफरेंस है, ये सब करा रखा है, मतलब बहुत सारी चीजें आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इससे पहले मैं ये कराती थी, मतलब अभी तो 11 क्लास हुआ है, 11 क्लास से पहले हम लोग का 7:30 जो एक्ट वाइज क्वेश्चन है, ये आप लोग के एक्ट वाइज है। तो प्ले ऑल पे क्लिक करोगे, सारा आप लोग को इवेंट मिल जाएगा। तो ये होता है यूट्यूब सेशन, ठीक है। ये आप लोग का है यूट्यूब सेशन, और भी मतलब अपने आप देख सकते हो सारा चीज। ये सीआईबी का है, मतलब फ्यूचर के लिए सारा वीडियोस है ये। ओके, इंग्लिश मीडियम देखो, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, दिस इज द इंग्लिश मीडियम वीडियो। सी JAIIB इंग्लिश मीडियम, दिस, सो दीज आर द JAIIB one. Okay, so I think that is clear to all of you what is playlist. Thank you so much. Thank you so much for attending the session.